and moral degradation. He said, you need to address these issues, the status of women in this society, the status of scheduled castes in this society, Harijans in this society. This needs to be addressed. The solution he suggested was, so disband Congress as a political party and create Lok Sevak Sangh and address these issues, work for these three issues, then only I consider that India has really become independent and free. So freedom has this big spectrum. So man wants freedom. Man wants peace. The third is unity, friends. That cannot be addressed by MDGs and SDGs. It's a higher level idea. Unity, when I say, remember, it's not uniformity. There are forces in the world. In the name of a particular ideology, they want uniformity, same form. Communism tried it. Capitalist society tried it. But at the end of it, UNESCO, in 1981 document, accepts the point that world is so diverse, you cannot have any one model to suit the entire world. The models have to be different. You cannot think of uniformity, but you have to strive for unity. Unity, what Deen Dayal ji says, what Indian philosophy says essentially, unity with respect for diversity. India has the philosophy, that's what Swami Vivekananda tells at his Chicago speech in 1893 at the World Parliament of Religions. I come from a country where we just don't limit ourselves to tolerance. In fact, there was the whole talk about tolerating, tolerance. Tolerance of religions, he says, is an inferior idea. Because tolerance means what? You are a lowly fellow, you are bad, you are smelling badly. Yet, I tolerate you. Tolerance has arrogance. Vivekananda says, I come from a philosophy which does not just tolerate, but accept the diversity. We validate different ideas and different philosophies. And he goes one step further and says, we are a society who just do not validate and accept. We celebrate diversity. Celebrating diversity. विविधता का उत्सव मनाना, but उसके अंदर unity का निर्माण करना. So that unity, freedom, and dignity, these are the three aspects that humankind requires. Integral humanism is an idea which addresses these three important aspects. The 16th SDG is about peace, friends. The most important aspect, probably the only aspect that comes under the third aspect of unity I talked about, the natural state of the universe, of the creation, is peace. War is not the natural state. It's another matter that the history that we teach to the mankind today is the history of wars, of the conflicts. Read European history, read the history of any country. The benchmarks that you find in history are about wars, are about victories, are about kingdoms. You have to talk about the history of communities, history of peoples. That is the way to bring peace in the world. Peace is the natural state of affairs. We in India, in our mythology, mythology is history for us. In that we read that in a sannyasi's ashram, there is a tiger, there is a cow, there is a man, there is a child, all of them living together. That is the natural state of the creation. Through our institutions, through our constitutions, through our laws, we have created conflict whereby each one fights against the other, each one tries to conquer the other. We try to conquer the nature, nature tries to conquer us. Then you have all the issues of climate change, etc., etc. Indian philosophy, which Deen Dayal ji highlights, is about the core
natural idea of the creation called peace. That is why any Indian prayer begins and ends with only one phrase, Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Let there be universal peace in the world. Friends, this is the direction in which Deen Dayalji wanted the thinking of the world to turn to. Deen Dayalji did not give any model. Deen Dayalji only gave a philosophy. He did not create any ideology. He only created an idea. And this idea is not Deen Dayalji's idea. Like Karl Marx का आइडिया था, जोसेफ कीन्स का आइडिया था, मार्क्स का तो आइडियोलॉजी ही बन गया वो. Deen Dayalji's idea is the idea of the quintessential Indian genius, which we have acquired, we have developed over millennia of its existence. I think on that idea we have to build institutions that suit the 21st century. I always tell the model has to be contemporary. We are the only people who believed that there will be eternal principles. But models have to change to suit the changing times. So I'm sure in the day-long proceedings today, lot of discussions will happen on these issues. I heartily thank the organizers, Atulji and Sachinji, for giving me this wonderful opportunity. Thank you and namaskar. Thanks a lot, Ramadhavji, for this very fascinating keynote address. I think it has set the right tone for not only this conference, but also for the work that we need to carry forward. I think one immediate sort of solution with which we at Niti Aayog and with our colleagues in UN family, we have been wondering is how to go about Goal 16. So I think your commentary on Goal 16 sets the right tone for the consultation that we should have been doing with Niti and UN family. Now I have great honor in inviting Dr. Mahesh Sharma ji, Honorable Minister of State with independent charge for Ministry of Culture. But much more important for this conference is the new addition in his portfolio, and that is of Ministry for Earth Sciences and Environment. So, thank you. उपस्थित विद्वज्जन, मातृशक्ति, आज जिस विषय पर चिंतन करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ उसके ज्ञाता यहाँ बैठे हुए हैं. ऐसे लोग जिन्होंने इस चिंतन पर अपना जीवन समर्पित कर दिया. मैं देख रहा हूँ महेश जी सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरा दीनदयाल जी पर 10 वॉल्यूम का एक वाङ्मय लिखकर आज समाज के सामने है, जिसका अन्य भाषाओं में भी प्रकाशन हो रहा है. दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे मंत्रालय की नोडल संस्था बनी, दीनदयाल जी के 100 वर्ष पूरे होने पर जीवन के आज उनका 100वां जन्मोत्सव शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, जिसका आने वाली 25 तारीख को समापन है. हालांकि ये समापन नहीं, मैं कहूँगा ये उनके विचारों की एक शुरुआत होगी, जो आने वाली पीढ़ियों तक हमें याद दिलाएगी उस सपने की, उस फिलॉसफी की, उस आइडिया की, जिस नींव का पत्थर बनकर आज एक इमारत खड़ी हो गई है. और उस इमारत की भव्यता को, उस इमारत की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए आज पूरा विश्व लालायित है. 25 सितंबर 1915 का वो दिन, ये मात्र एक संयोग नहीं था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से 99वां वर्ष दीनदयाल जी का जन्मोत्सव था वो. और उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का ये स्वीकार करना कि आज के इस युग में भी जो देश 70 वर्ष की आज़ादी मना रहा है, विश्व का इतिहास लंबा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था अगर ये स्वीकार करती है कि आज हमें बढ़ना है उस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से आगे के सपने को, जिसे हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या
सतत विकास का हमारा लक्ष्य क्या हो, उस लक्ष्य पर आज चिंतन करने के लिए आज हमारे बीच में DRI के श्री अतुल जैन जी, RIS के डायरेक्टर जनरल श्री सचिन जी और नीति आयोग का जिन्हें अभी नया जिम्मा मिला है, प्रधानमंत्री जी के पूरे विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सपनों में रंग भरने का काम वो पूरा करेंगे, श्री डॉक्टर राजीव कुमार जी। और हमारे बीच में आज कीनोट अभी हमने सुना, एक ऐसे चिंतक, एक ऐसे मनीषी फिलैंथ्रोपिस्ट का, श्री राम माधव जी का, जिन्होंने इस पर बहस करना घंटों वर्षों महीनों का समय हो सकता है, लेकिन उसको अगर कोई कहे कि एक चम्मच रूपी अमृत में बनाकर हमें पिला दीजिए, हमारे सामने पेश कर दीजिए, वो काम श्री राम माधव जी ने किया है। मैं प्रणाम करता हूं उनकी उपस्थिति को और उनके सोच को। ये सोच के पत्थर की इमारतें या भूभाग का टुकड़ा किसी देश, किसी समाज, किसी सभ्यता की पहचान नहीं बना करती। किसी देश समाज की पहचान वहाँ के रहने वालों की शिक्षा का लेवल, स्वास्थ्य का लेवल, संस्कृति, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी, उनके सोच और उनके विचारों से बना करती है। आज उन्हीं विचारों पर जो इमारत खड़ी हुई है, भारत की जिस विश्व गुरु की, जिसकी तरफ पूरा विश्व ललचाई नजरों से देख रहा है, उनका लिखने का नजरिया दूसरा है। उनका देखने का नजरिया, अभी मैं 4-5 बार चाइना मुझे जाने का मौका मिला ब्रिक्स मिलन के माध्यम से, मैंने देखा वहाँ के लोग सब हिंदी सीखने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं हिंदी सीख जाए हम, तो उसके पीछे मैंने भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करी, तो उनके पीछे सीधा उनका नज़रिया है कि हिंदुस्तान उन्हें एक बहुत बड़ा बाजार दिखाई देता है और उस बाजार में घुसने के लिए, पैठ करने के लिए हिंदी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। उनका सोच है कि विश्व एक बाजार है। हमारी सोच कहीं विवेकानंद जी और उससे पहले की उस सोच वसुधैव कुटुंबकम, क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि विश्व को एक परिवार की तरह सोचे? अभी जिस मूल मंत्र की व्याख्यान राम माधव जी कर रहे थे कि मनुष्य सबसे दुनिया के अंदर स्वार्थी प्राणी है। जब ईश्वर ने सब कुछ बनाया, पूरी प्रकृति बनाई, जलचर थलचर पशु पक्षी वेद सब बनाए, तो उसने अपनी सर्वोत्तम कृति बनाई थी मनुष्य। ये मनुष्य मेरी सबसे सुंदर कृति है, जो सब कुछ बिल्कुल एक आदर्श की तरह करेगा। चाहे वो प्रकृति के साथ दोहन की बात हो, चाहे वो समाज के अंदर गुलाम और राजा की व्यवस्था हो, चाहे वो धर्म जाति बिरादरियों के नाम पर समाज को बांटना हो, चाहे वो सांप्रदायिकवाद, जातिवाद, गरीबी और इन सब समस्याएं, ये सब हमारी कहीं ना कहीं इसकी जड़ के पीछे भी ये स्वार्थी मनुष्य रहा है। और एक कवि पाठ कर रहा था अपनी काव्य पाठ में, तो उसके शब्द दिल को झंझोड़ने वाले थे। वो कहता, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा। अगर आप भगवान भी हैं और मेरे मतलब के नहीं हैं, तो मैं आपको कोई प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। इसके पीछे छुपा हुआ अगर आज सारे चिंतन की अगर हम बात करें, तो आज दीनदयाल जी को भी हम प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिया हुआ संदेश, चाहे वो अंत्योदय का हो, चाहे वो संदेश इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का हो। मैं पेशे से डॉक्टर हूं। क्या कोई कह सकता है कि मेरी उंगली में कैंसर हो और मैं स्वस्थ हूं? क्या कोई कह सकता है कि मेरी दोनों आंख में से एक आंख है और मैं स्वस्थ हूं? मुझे फला बीमारी है लेकिन मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं एक कामयाब हूं। उस शब्द की इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की जिसकी बात करिए, एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो समग्रता के अंदर संपूर्ण हो। समग्रता में संपूर्णता का कल्पना करने की सोच, और वह भी उस व्यक्ति द्वारा जो साधनों के अभाव में था। कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला। गरीबी का मॉडल, जिस पॉवर्टी के मॉडल पर हम लोग काम करते चले आए अभी तक, और नारा ही लगते रहे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या एक समाज, एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आज से 30 वर्ष पहले एक संस्था से जुड़ा था, एनजीओ से। उस एनजीओ के लोग आए,
तो मैं उसमें एक डॉक्टर था, तो उन्होंने कहा साहब ये भारत की जनसंख्या जो बढ़ रही है, अमेरिका की एक संस्था है जो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को दान देना चाहती हैं कुछ। तो 25-30 साल पहले हमने 5 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का बनाया, फिर उन्होंने कहा नहीं बढ़ाओ, अमेरिका के लोग ये डॉलर में देते हैं तो ज़्यादा दे देंगे। तो हमने कहा चलो 5 लाख का बना दो, बोले नहीं नहीं और ज़्यादा का बढ़ाओ। तो हमने 15 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया कि साहब भारत की जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी, और हम 15 लाख की प्रोजेक्ट लेकर उनके पास पहुंच गए। कुछ अमेरिकन लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या प्रोजेक्ट लेके, हमने कहा ये 15 लाख। 50 लाख इज डन। उन्होंने कहा 50 लाख इज डन। तो हम अपना 15 लाख कह रहे थे, वो उसे 50 लाख समझ रहे थे। कागज पढ़ने की ना उन्होंने कोशिश करी ना हमने उन्हें दिखाया। आखिरी में हमें बताया गया कि आपके 50 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। अब वो उस भिखारी वाली हालत थी जो कटोरा लेके बाहर बैठा हो और उसे 5 रुपए की अपेक्षा करो और आप उसे 500 का नोट या डाल दें। तो हम शाम को जब पहुंच गए, बोले साहब सेलिब्रेट करेंगे और भोजन है होटल में। हमने उससे पूछना शुरू किया कि मैंने कहा मैडम ये बताइए 50 लाख रुपए में आपकी चिंता हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में क्यों है, हमें ये बताइए। और पूछते पूछते 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार में आखिरकार वो महिला कि क्या हम चाहेंगे कि आपके बराबर के अंदर बारात ऑफ बेगर्स बाहर खड़ी हो, अगर हम यहाँ दोपहर का भोजन कर रहे होंगे और 10,000 आदमी बाहर भूखे खड़े होंगे तो क्या हम चैन से भोजन कर पाएंगे?